Now, so the next topic is stoichiometry. Write it down. And for today's class, I'll need your extra participation because this is not something that I can dictate and you can understand. You'll have to be actively participating in the today's class, otherwise you won't be able to understand the topic. So the topic Yes, is stoichiometry. Okay. Now, what is the stoichiometry? First of all, stoichiometry basically आपको ये बताता है, पहले बेसिक टर्म सीख लेते हैं. सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन है, ठीक है. So, is how do you read this equation? This equation is read as following. If when 2 moles of A reacts with 3 moles of B, it gives you 5 mole of C, and let's make another thing, 7 mole of D. This is how it is read. ये पढ़ना बहुत जरूरी है आपको. 2 moles of A reacts with 3 moles of B and gives you 5 moles of C and 7 moles of D. Write it down because this is the only theory part that you are going to learn today. Rest is the numerical. So how do you read the equation? 2 moles of A in terms of mole. You always read in terms of mole. So 2 moles of A reacts with 3 moles of B gives you 5 moles of C and 7 moles of D. Write it down in your notebook and yes, turn on sir. your cameras. If you are not going to turn on your camera, I'll eject you from the class. So turn on the cameras. Rest of you. Okay. Okay. So the question says, or the equation is read as 2 moles of A react with 3 moles of B and gives you 5 moles of C and 7 moles of D. अच्छा, एक चीज और पूछनी है. Is there anyone who is not comfortable in Hindi? Because I'll be using a little bit of it. Okay, everyone Yes, understands the Hindi, right? A little bit of it. Yes, yes, sir. sir. Okay. So suppose कर लीजिए ये जो reaction होती है, this is a representation. Okay, this is not. ठीक है, this is a representation. This is not the reality. For example, I hope all of you know how to make a tea, right? Yes, I sir. hope all of you know how to make a tea. So what does that represent? अगर आपने जिंदगी में पहली बार आप चाय बनाने जा रहे हैं तो आपकी मम्मा आपको बताएंगे या पापा बताएंगे, जो भी बताते हैं, they actually will tell you that go and take 1 glass of milk if you don't want to add the water and add in that 1 glass of milk. Try to understand what do I mean by representation. 1 glass of milk, उसमें आप से फॉर एग्जाम्पल 2 स्पून ऑफ शुगर डालेंगे एंड से फॉर एग्जाम्पल 2 और 1 स्पून टी डालेंगे. That is the instruction that they have given you, and cook it for 5 minutes. I know this is a very ordinary tea. You might add ginger in it and cardamom and clove and all those things, but still. So that is the basic instruction. But अगर मान लो आपके 4 दोस्त आए हैं घर पे, ठीक है, सपोज कर लो आपके 4 दोस्त आए घर में, तो आप क्या करेंगे? क्या आप 1 ग्लास मिल्क तब भी लेंगे या यू विल No, इंक्रीज द sir. अमाउंट ऑफ मिल्क? Increase. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल इंक्रीज द शुगर एंड यू विल इंक्रीज द टी एंड increase the time of the reaction, right? So that is Yes, sir. what this reaction represents. This does not represent the exact number. It represents it is a representation how a reaction will proceed. This is not the real reaction. Try to understand. This reaction is not a real reaction. This is merely a representation. So the reaction will proceed according to this representation. For example, अगर आपको 2 ग्लास चाय बनानी है तो आप क्या करेंगे? 4 चम्मच शुगर डाल देंगे या 2 चम्मच टी डाल देंगे और कुक करेंगे 10 मिनट्स तक के लिए या बॉईल करेंगे उसे 10 मिनट्स तक के लिए. तो दैट इज हाउ द रिएक्शन वर्क्स एज वेल. आपको डिपेंडिंग अपॉन दिस रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू डू द रिएक्शन. तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी. बट बिफोर मूविंग टू दैट, these numbers these numbers are called stoichiometric coefficient. These are called stoichiometric coefficient. Write it down.
आगे बढ़े. Okay. So let's see. Let's understand the topic. For example, question number 1. थ्योरी मैंने आपको सारी पढ़ा दी, इतनी थ्योरी थी, ठीक है. तो सपोज कर लेते हैं, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं. 2a gives you 2a requires 3b and gives you 5c. अभी मैं d नहीं लिखता, इतने ले रहा हूं मैं, ठीक है. Now this is the representation, this is the reaction, this is not a real reaction, this is merely a representation. How do you read that? 2 moles of a reacts with 3 moles of b and gives you 5 moles of c. Now आपको एक्चुअल में जो दिया गया है, अगर आपके पास 3 moles of a है, ठीक है, you have 3 moles of a, so how many moles of b will be required and how many moles of c will be forming? Can anyone answer? So Right, 2 as mole the of question solute is, and 1 mole of solute. yeah, send them into the message, so it will be better. How many moles of b will be required and how many moles of c will be forming? That is the question. Try it on your own. It's a very simple question, as I told you. So you might be able to solve it on your own without my help. But still, just I'll explain it. Just try it on your own. The question is, this is the reactions or the representation. अब reality में आपने 3 moles लिया है A का, ठीक है, A के 3 moles लिए हैं. So how many moles of B will be required and how many moles of C will be forming? Use the unitary method that we have done in the last class. नहीं बेटा, गलत है. Use the unitary method that we did in the last class. It's okay, I'll explain. I haven't explained it yet. उसके बाद आप कर लेंगे. बेटा आधा ही आंसर दिया आपने. 2.5 क्या पूरा लिखिए. 2.5 ऑफ व्हाट? बी और सी. ऑल्दो आंसर 2.5 नहीं होगा. नहीं, 2.5 नहीं होगा. एनीवन एल्स? बेटा ये वही क्वेश्चन है. अभी अगर आपको एक ग्लास चाय बनाने के लिए, टू मेक अ 1 glass of tea, you have to add 2 spoonful of sugar. So to make say for example, अगर मैं पूछूं आपसे 1.5 glass टी बनानी है, तो कितने spoonful of sugar आप ऐड करेंगे? बोलिए. अगर One. आपको एक ग्लास के लिए दो शुगर चाहिए, ठीक है, तो 1.5 ग्लास के लिए कितने शुगर चाहिए होगा? 1. Hey, 1.5. कैसे बेटा? No, sir. Well, 1 means half glass के लिए, yeah, 1.5 glass के लिए. 1.5 ग्लास के लिए कितना शुगर चाहिए होगा? 3 3. maybe. तो यही तो यहाँ पे करना है. देखिए, हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? यूज द यूनिटरी मेथड. कैसे करते हैं? 2 मेथड है. मेथड नंबर 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेथड नंबर 1, दिस इज द मोस्ट यूजफुल मेथड. इट इज मोस्ट वाइडली यूज. बाकी एक इसका शॉर्टकट भी होता है, वो भी हम कर लेंगे. तो आपको 2 मोल ए के लिए कितने मोल बी चाहिए बताइए जरा. रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ ए के लिए कितने बी चाहिए? 3. 3. तो 1 मोल ए के लिए कितना चाहिए? 1.5. लास्ट में हाँ 1.5. या 3/2. स्पीक इट लाइक दिस, राइट? 2 डिवाइड हो जाता है यहाँ पे. तो एक्चुअल में कितने ए दिए गए हैं? एक्चुअल में कितने ए दिए गए हैं? 3. 3. तो 3 ए के लिए कितना हो जाएगा? 3/3. 3/2. समझ में आया? अगर किसी को डाउट हो तो बता दो. अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पूरी क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है. अभी मैं दोबारा भी कर रहा हूँ, डोंट वरी. दूसरा पॉइंट,
अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट इसका। ये बताइए 2a के लिए कितना c लग रहा है, कितना c बन रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन 2a से कितना c बन रहा है? 5 तो 1a से कितना बनेगा? 5 by 2 एक्चुअल में कितना a दिया गया था? 2 है ना 3 तो 3a से कितना हो जाएगा? 3 into 5 by 2 That is 15 by 2. This is how you solve the question. Is that understood? yes sir. Okay. शॉर्टकट इसका क्या होता है देखिए, ये नोट कर लो, फिर इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। बट डोंट अप्लाई द शॉर्टकट बिकॉज अगर मैंने क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन में जनरली हो जाता है, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में शॉर्टकट में प्रॉब्लम होती है। बड़े So wait. yes sir, नेक्स्ट लाइन में एक मिनट हाँ श्योर, टेक इट। 2a gives 5c, so 1 by a gives 5 by 2c, so that 3a gives 3 into 5 by 2c. Yes बड़े sir. Yes अच्छा, sir. अब बताइए जरा दूसरा तरीका देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल एक्चुअली, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करने कहता हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा ही सिंपल है और जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यू हैव इन द रिप्रेजेंटेशन आपको 2 दिया गया है और आपसे पूछा 3 दिया है, तो 2 को 3 में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर 2 को 3 में कन्वर्ट करना है तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 by 2. इफ यू हैव टू कन्वर्ट 2 into 3, विद व्हाट नंबर यू विल मल्टीप्लाई इट? 3 by 2. Yeah, you just do the question of mathematics. 2x is equal to 3, so x will be 3 by 2. So just multiply the whole equation by 3 by 2. So what will happen? 3 by 2 into 2a plus 3 by 2 into 3b, giving you 3 by 2 into 5c. So 2 cancel हो जाएगा, तो 3a Yes sir. will give you 9b by 2. तो देखो b 9 by 2 आ गया जो हमने पहले ही किया था, and 15 by 2 c, तो c 15 by 2 आ गया। सेम क्वेश्चन है but another way. Yes, This sir. is method number 2. So this is how you can solve the question as well, but I'll prefer कि आप पिछले मेथड से ही करिएगा because वो टफ क्वेश्चंस में काम आता है, तो you'll need a little bit of practice. सर वो पहले वाला फिर से एक बार समझा जी ने कंफ्यूजन हाँ हो हाँ, गया। मैं अभी दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, आज यही करना है पूरा, तो डोंट वरी, आज पूरे क्वेश्चंस में यही करना है लगभग और लिमिटिंग रीजन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर, पहला चैप्टर बहुत छोटा है, तो इसके बाद क्या मैं बुक 2 का चैप्टर 1 ले सकता हूँ 11th की? क्योंकि वो इससे ज्वाइन होगा तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ नेक्स्ट चैप्टर जिसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन था और ऑक्सीडेशन स्टेट था, वो मैं मोल के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, बढ़े आगे? यस सर। ओके, देखिए तो आपको अगेन क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2a plus 3b gives you 5c, सेम क्वेश्चन है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन और आपसे पूछा गया है, इसके आपको 4 मोल दिए गए हैं। So if the C is the C that is forming is of 4 mole, then how much amount of or how many moles were of A and B were taken? Question clear है? अगर C जो आपका बन रहा है वो 4 मोल बन रहा है तो 4 मोल्स बन रहा है, तो how much A and B was taken or how many moles of A and B were taken in the question? ट्राई करिए सॉल्व करने का। ओके, अभी मैं दोबारा समझा रहा हूँ, डोंट वरी बेटा, आ जाएगा। देखे तो बताइए आप जिया बेटा, 5c के लिए 5c के लिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कितने 5c के लिए कितने a लग रहे हैं? हाउ मेनी a आर बीइंग यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5c? 2 2 a आर बीइंग
यूज। तो 1C के लिए कितना होगा आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, बताइए 1C के लिए कितना होगा। 2/5। और एक्चुअल में कितना दिया गया है, ये तो अभी रिप्रेजेंटेशन था, एक्चुअल में कितना दिया गया है। 4। तो 4C के लिए कितना हो जाएगा। 8/5। इजी है ना, समझ में आया। सर। ओके अच्छा अब फिर से बताइए बेटा, 5C के लिए कितने बी लग रहे हैं। 3B। 3B ठीक है। तो 1C के लिए कितने लगेंगे। 3/5B। एक्चुअल में कितने दिए गए हैं C। 4। तो 4C के लिए कितना हो जाएगा। 12/5। 12/5। समझ में आया। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो पूछ जरूर लेना, बिकॉज बहुत ही सिंपल सी चीज है और आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके अगला नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट ऑफ यूज समझ में आ रहा है ना ये। यस सर। ओके मेथड 2 से भी करना है। शैल आई सॉल्व इट यूजिंग मेथड 2। No, sir. Yes, sir. ओके तो आपको 5 को 4 में कन्वर्ट करना है, राइट। यू हैव Yes, टू sir. कन्वर्ट द 5 into 4। तो 5 को अगर 4 में कन्वर्ट करना है तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 4/5. 4/5। तो पूरी इक्वेशन को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 into 2, 4/5 into 2A प्लस 4/5 into 3B एंड 4/5 into 5C। तो देखो सेम क्वेश्चन आ गया, 8/5, 12/5। समझ में आ गया। Yes, sir. ओके नाउ लेट्स डू अ, ये तो अभी तो हमने ऐसे ए बी मान के कर रहे थे, लेट्स डू अ रियल लाइफ क्वेश्चन। N2 plus 3H2 gives you अमोनिया। ठीक है, इसके आपको 4 मोल दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसके मोल कितने होंगे और इसके मोल कितने होंगे और मास कितना होगा, दोनों बताने हैं आपको। ठीक है, यू हैव टू टेल द मोल्स ऑफ N2 एंड द मोल्स ऑफ अमोनिया एंड द मास ऑफ N2 एंड द मास ऑफ अमोनिया। डू द क्वेश्चन। तो देखिए व्हाट विल हैपन हियर, देखो सब लोग जिनका नहीं हुआ, 3H2 के लिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, 3H2 के लिए you'll need 2 अमोनिया। ठीक है, so 1H2 will need 2/3 अमोनिया, बट रियलिटी में कितना H2 दिया गया है 4, तो 4H2 will need 8/3 अमोनिया। ओके अच्छा सेकेंड पार्ट में आते हैं। 3H2 will need 1N2, so 1H2 will need 1/3 N2। So how many H2 has been given to you? 4. So 4H2 will need 4/3 N2। राइट, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा अब कई बार इसके अगर आपको मास भी निकालने के लिए कहा था अगर याद हो, तो अमोनिया कितना आया है आपका 8/3। तो अमोनिया इज 8/3 मोल। ठीक है, दिस इज द मोल। अब मोल बराबर क्या होता है, तो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। तो मास विल बी मोल इनटू मोलर मास। तो मोल इज 8/3 and the molar mass of ammonia is 17। So this is the answer। And the second mass of N2 के कितने मोल आए थे पीछे बताना। 4/3. N2 के 4/3। तो N2 का मोलर मास होता है 28
So mass will become 4 by 3 into 28. Is that clear? Yes, sir. बड़े Yes, sir. ओके नेक्स्ट आपको कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो सब मास के फॉर्म में दिए जाएंगे ओके जैसे सेम क्वेश्चन ले लेते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स यू अमोनिया ठीक है इसका आपको दिया गया है 42 ग्राम और आपको इसके पता करने इसके पता करने ठीक है तो वेन एवर द वैल्यू इज बीन गिवन टू यू इन ग्राम अभी तक हम किस में कर रहे थे मोल में कर रहे थे तो कन्वर्ट इट इनटू मोल whenever the value has been given into gram convert it into mole that's it और कुछ नहीं करना है आपको ठीक है तो 42 ग्राम है N2 का मोलर मास कितना होता है अभी बताया मैंने बोलिए 28 so it will become 42 upon 28 so that is 3 by 2 mole तो N2 अगर 3 by 2 moles है so you have to figure out how many moles of H2 and how many moles of ammonia will be used do that quickly how many moles of N2 and how many moles of ammonia will be used sorry how many moles of H2 and how many moles of ammonia will be used the whole point is remember this very clearly you have to always solve with respect to moles okay it doesn't matter in which form it has been given to you always solve with respect to mole so suppose they have given you N2 as 42 gram so convert it into mole first then do the solution समझ में आया सर अगर कोई भी ग्राम में दिए सर अगर ग्राम में दिया है तो मोल में कन्वर्ट कर देना है yeah not only gram it may be given you in something else for example they might give you in liter they might give you in terms of molarity anything it doesn't matter in which form it has been given to you you'll always have to convert it into mole ठीक है so for Yes, example sir. one N2 requires one N2 requires 3H2 okay so how many N2 has been given to you 3 by 2 N2 has been given to you so it will become 9 by 2H2 same ways 1 N2 2 ammonia sorry मैंने NH2 लिख दिया था इसे कर लेना अमोनिया है 1 N2 requires 2 ammonia so 3 by 2 N2 will require 3 ammonia easy here Yes, sir. okay now there is a one more type of question यस सर they may ask you one more type of question for example CH4 plus 2O2 gives you sub gases ठीक है CO2 plus twice H2 ठीक है आपको दे दिया गया थोड़ा सा टफ है अगर याद नहीं होगा तब अगर याद है तो इजी होगा फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया गया आपको 5.6 लीटर और पूछा गया ये कितना होगा ये कितना होगा और ये कितना होगा तो 5.6 लीटर बराबर कितने मोल होता है हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5.6 लीटर वी डिड द क्वेश्चन राइट इन द लास्ट क्लास 1 mole is equals to 22.4. Sorry. okay so 1 mole is equal to 22.4 liter or 22.4 liter is equal to 1 mole so 5.6 liter will become how many moles But so sometimes they might give you in liter and to convert that you have to convert it into mole so 22.4 liter is equal to hota hai 1 mole so 5.6 liter will be equal to 1 by 4 mole is it clear we did that in the last class is it clear yes, यस सर okay
तो हमेशा पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? मोल में. इट डजंट मैटर इन विच फॉर्म द रिएक्शन हैज बीन गिवन, you have to convert it into mole, otherwise you won't be able to I mean you may be able to solve it, but it will be a little bit difficult. Although it doesn't matter liquid है गैस है यहाँ पे, तो ये 1/4 मोल है, तो क्योंकि आपके 1 CH4 से ओके 1 CH4 से 2 O2 होता है, तो 1/4 CH4 to 2 times 1/4 O2, so it will become half O2. Yeah. So this is half O2. Okay. Again 1/4 CH4 से 1/4 ये बन जाएगा, क्योंकि 1 CH4 से 1 CO2 बन रहा है, तो 1/4 से 1/4 बनेगा. अगेन 1/CH4 से 2 वाटर बन रहा था, 1 CH4 is giving you 2 water, so half will also give you same thing. तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. ठीक है. दिस इज हाउ यू सॉल्व देम. ओके डन. तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे. सही किया आपने पहले. हाँ. ठीक है. अब सर देखिए हाँ बेटा. सर सर वो लिक्विड में भी वो एसटीपी गैस का नहीं लॉ नहीं लगता है, नहीं वो बेटा, कभी भी 22.4 वाला. गलती से भी मत कर देना. दिस 22.4 लीटर is equal to 1 mole is only for gaseous state. Read the statement that I dictated in the last class. This is only for gaseous, nothing else. But वो तो आपने इसीलिए CH4 में लगाया था ना, बाकी कहीं नहीं लगा रहे हैं आप, इसमें नहीं लगा रहे हैं आप, केवल मोल कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. This is only for Yes, sir. gaseous, nothing else. Okay. The next topic is something called limiting reagent. Write down the heading. Limiting reagent, or in the short LR. Okay. So let's go back to our example. Okay. So 1 glass मिल्क लिया था आपने, उसमें आपने 2 स्पून शुगर डाली थी एंड 1 स्पून टी डाली थी. राइट. दिस वॉज योर स्टोरी टू मेक अ ग्लास ऑफ टी. ओके. टी लीव्स डाली थी ऑब्वियसली. नाउ कमिंग टू द पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल बेटा आप गए, आपने फ्रिज में देखा, आपके पास आधे ही ग्लास मिल्क है. तो ये बताओ, अगर आधा ग्लास मिल्क है तब भी क्या आप 2 स्पून ऑफ शुगर डाल देंगे? 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर यू विल यूज. बताइए. इफ यू हैव No, half sir. glass of milk, would you still use 2 spoonful of sugar and 1 spoonful of tea? No, sir. No, One. sir. नहीं ना. So the question that I'm going to frame now, it's going to be a little bit different manner. What will determine out of all the 3 ingredients that you have? ठीक है. Out of 3 ingredients that you have, milk, sugar and tea leaves, which one will determine how much amount of tea you are going to prepare? Milk. समझ में आया? मिल्क, क्योंकि वही सबसे कम है. इज दैट क्लियर? तो मिल्क विल डिटरमिन कि आप कितना चाय बना सकते हैं, कितनी टी बना सकते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बोल. तो सेम गोज फॉर लिमिटिंग रिएजेंट. Limiting reagent is the component in the reaction which determines how much product will be formed. Right? फिर से रिपीट करते हैं. आपके पास मिल्क था, टी था और शुगर था. तो मिल्क आपके पास कम था. ठीक है. मिल्क था आपके पास हाफ ग्लास. तो मिल्क ही तो डिटरमिन करेगा कि कितनी चाय बनाएंगे आप. ऐसा तो नहीं कि आधा ग्लास मिल्क लेके आप 1 ग्लास चाय बना लेंगे. बना सकते हैं पानी मिला के, बट उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. Yes. और टू लाइक वाटर इन देयर टी ना. तो यहाँ पे आते हैं आपको. तो हाफ ग्लास मिल्क आप डालते हैं, तो आपके पास जो टी का अमाउंट होगा वो हाफ ग्लास ही होगा लगभग. तो दैट्स द होल थिंग. द मिल्क इज द थिंग दैट डिटरमिन्स कि हाउ मच प्रोडक्ट इट इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग, और मिल्क इज द थिंग दैट इज गोइंग टू लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. तो राइट डाउन. लिमिटिंग एजेंट इज द कॉम्पोनेंट
Limiting reagent is the component that determines how much product is going to be formed. That determines how much product is going to be formed. और इसको निकालने के बहुत सिंपल सा तरीका होता है, पूरा एकदम मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड है, कुछ आपको सोचना ही नहीं है, मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लिखो स्टेप फॉर फाइंडिंग आउट लिमिटिंग रीजन, स्टेप फॉर फाइंडिंग आउट लिमिटिंग रीजन। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है मेक श्योर दैट द रिएक्शन इज बैलेंस। राइट डाउन मेक श्योर दैट द रिएक्शन इज बैलेंस। First step is make sure that the reaction is balanced. Second point is divide the given number of moles. Divide the given number of moles. Divide the given number of mole of a component from corresponding stoichiometric coefficient, from corresponding stoichiometric coefficient. Last point is the one with the smallest value is limiting reagent. The one with the smallest value is the limiting reagent. ये स्मॉलर वन, ठीक है। वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो शुरू से ले रहे थे। Now this is the representative reaction, right? This is the representative reaction that we took in the beginning. Now how many moles of, suppose मैंने आपको 3 moles of इसके दे दिए एंड और चलो 4 ले लेते हैं, 4 moles इसके ले लिए और 5 moles इसके ले लिए, ये आपको गिवन है, ठीक है। और अब आपसे पूछेगा राइट डाउन द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन एज आई हैव रिटन इट, ठीक है, क्योंकि एक एक करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू एबल टू सॉल्व दिस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पार्ट ए, व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। थोड़ा सा बड़ा होगा ये क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। बी पार्ट इज व्हिच इज द एक्सेस रिएजेंट, व्हिच इज द एक्सेस रिएजेंट, व्हिच इज द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। थर्ड पार्ट इज हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, and the last part is how much excess reagent will remain, how much of the excess reagent will remain. Okay, now pay attention, अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज दोबारा, how much of the excess reagent will remain, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, समझिए थोड़ा सा नया है आपके लिए, अगर पहले नहीं पढ़ा है तो ठीक है। तो पहला पार्ट है व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, Which is a limiting reagent? ओके स्टेप पढ़ो जरा लिमिटिंग रिएजेंट के, बोलो Make फर्स्ट स्टेप क्या था। sure that the reaction is balanced. तो मैंने दी है। सेकंड स्टेप क्या है, Make sure the reaction Divide the is given balanced. number. Divide the given number Divide of the moles of coefficient. component from तो corresponding डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे 4 मोल्स है, यहाँ पे 5 मोल्स है। डिवाइड द मोल्स फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट,
तो ये कितना हो जाएगा 4/2, ये कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? The one with the smallest value is the limiting reagent. कौन सा स्मॉल है इसमें? 2 स्मॉल है या 1.66 स्मॉल है? 1.66. 1.6. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? B. करिए, लिख लीजिए ऐसे ही। अगर लिमिटिंग रीजन बी है तो सेकंड पार्ट पूछा था आपसे विच इज द एक्सेस रीजन, तो एक्सेस रीजन क्या हो जाएगा? A. इजी है? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स डू द सी पार्ट। इसके 4 दिए गए हैं, इसके 5 दिए गए हैं। अच्छा ये बताओ विच वाज द लिमिटिंग रीजन? B. B is the limiting reagent. And which one determines how much product will be formed? The limiting reagent or excess reagent? Limiting reagent. Limiting reagent determines how much product will be formed. To do the question, ये रिप्रेजेंटेशन था, तो 3B कितने C दे रहा था? 5C. 5C. 3B is giving you 5C. So 1B will give you how much C? 5/3C. Okay, अब एक्चुअल में आपके पास कितना B है? 5. 3B. 5/3. इजी है ना? Yes, sir. Right. लिख लेना अच्छे से, since B is the limiting reagent, it will determine the amount of product. Since B is the limiting reagent, it will determine the amount of product. इसलिए हमने B के सहारे पे किया है, ठीक है? अच्छा, 5B के करेस्पॉन्डिंग 25 लग रहा है। अच्छा, 5B के करेस्पॉन्डिंग कितना A लगेगा, निकालिए। 5B के करेस्पॉन्डिंग कितना A लगेगा, सॉल्व करके बताइए। दैट इज द पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट आई थिंक। तब हाउ मच A will be consumed with respect to 5B? Okay, let's see. So 3B gives you 2A, 1B will give you 2/3A. How much B is in actual? 5B. 5B will give you 10A/3. Right? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बताइए जरा। No, Is there any problem pertaining to this thing? Okay. No, sir. 3B, according to the reaction, 3B is giving you 3B is requiring, not giving, pardon me. 3B is requiring 2A, right? So 1B will give you 2/3A, but actual में आपको B कितना दिया गया है? 5B. तो 5B will require 10A/3. Is that clear? Yes, sir. But initially कितना A दिया गया था, ये बताइए। How much A was actually taken? 2. No, beta. 2 is the representation. Oh. That is not the amount. 4. How much A was actually taken? 4. 4. So the remaining A will be. This is the remaining A. भाई आपने 4 लिया था, उसमें से 10/3 खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चाय का एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से, तो अगर मान लेते हैं आपको 2 चम्मच शुगर दी गई थी, 3 स्पून ऑफ टी दिया गया था, और वही याद रखना जो हमने पढ़ा था, और आपको 1 ग्लास मिल्क दिया गया है। तो ये बताओ बचेगा कितना और क्या बचेगा? जो हमने शुरू से एग्जांपल ले रहे हैं वही यूज करिए, बताइए कितना बचेगा और क्या बचेगा? सर T बच जाएगा। T बचेगा और दैट विल बी 2T विल बी रिमेनिंग। तो यही कहानी यहाँ पे है। एक्चुअल में आपने 4 लिया था A, बट यूज A कितना होगा? 10/3। A कितना यूज होगा?
10/3, तो बचेगा कितना 4 माइनस 10/3। पहला क्वेश्चन है ये, डोंट वरी, विल डू मैनी क्वेश्चन और 2 और 3 मोर क्वेश्चन, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? एक बार पढ़ लो पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्यूशंस के साथ। Yes, sir. Just read the whole thing again, then we'll do the another question. Write down the same questions again. ये लिख लेना सेम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द लिमिटिंग एजेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज द एक्सेस एजेंट। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच टी विल बी फॉर्मिंग, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एक्सेस एजेंट विल रिमेन। राइट डाउन द सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो पहला पार्ट है विच इज द लिमिटिंग एजेंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ पे 11/5, सो इट विल बी 1 पॉइंट कितना होगा 33, Yes, और sir. दिस विल बी 1.2 No, sir, आई 2. थिंक, so that will be slower. So B is the limiting Yeah. agent. B is the limiting agent. B part is, A is the excess agent. So which one will determine the product? Yes, sir. कौन सा वाला A और B, which one will determine the product? B. B. So 5B is giving you 6C. So 1B will give you 6/5C. So 11B will give you 11 into 6/5C. So that is 66/5. Okay. Now the D part is how much A will remain. Okay, how much A will remain. So 5B is requiring 3A. So 1B will require 3/5A. So 11B will require 33/5A. कुछ गड़बड़ है? सर हाँ बेटा, सर आपने कहा था लिमिटिंग, सर क्या बैलेंस बोला? नहीं है सर, फिर से बोलिए। रिएक्शन बैलेंस। बैलेंस बेटा, सर वो जब रिएक्शन, हाँ हाँ, यहाँ पे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर ठीक है, ये बैलेंस वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये हमने रियल एग्जांपल नहीं लिया है। सर मेरा भी उतना ही आया था, 3/5 ही आया है। ठीक है, तो इतना ए लगेगा, बट हमने जो एक्चुअल में ए लिया है वो कम लिया है। तो 4/3 इज 1, एक मिनट, 4/3 कितना, 1.33। ये गलत कर दिया हमने, 1.33 लिया था, सॉरी। 4/3 कितना होगा, माय मिस्टेक, किसी ने बोला भी नहीं आप में से। दिस इज 1.10, तो 1.2 समथिंग ए भी आएगा, 1.2 ए भी आएगा। तो दिस इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट क्वेश्चन। खैर, आपको पॉइंट क्लियर आ गया ना? पॉइंट क्लियर। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी, ये क्वेश्चन सही नहीं है तो लिखे ना, क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट या समथिंग। ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं जो बैलेंस वाली रिएक्शन है, ने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी थी। चलिए ये बैलेंस है, यहाँ पे इसके 2 मोल्स ले लेते हैं, यहाँ पे इसके 7 मोल्स ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, करिए। सर हाँ बेटा, सर वो 11/5 तो 2.2 आएगा ना? हाँ वो मैंने गड़बड़ कर दिया था, मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी थी। तो वहां पे ए है लिमिट, वहां पे ए लिमिटिंग एजेंट है, पिछले वाले में सही कर लेना। यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट ए है और बी इज द एक्सेस एजेंट, तो उल्टा कर दिया मैंने, मतलब ये मैं कह रहा हूँ। फिर से सॉल्व करना है इसको, ये मैंने उल्टा कर दिया है। खैर अभी ये क्वेश्चन करिए आप। ओके, देखते हैं। तो पहले लिमिटिंग एजेंट पता करते हैं। तो यहाँ कितना है, 2/1 है, यहाँ पे 7/3। तो कौन सी छोटी वैल्यू है, 2/1 और 7/3? 2/1. 2/1। तो लिमिटिंग reagent इज A, एक्सेस reagent इज, सॉरी ये बोल रहा हूँ मैं, N2, एक्सेस reagent इज H2।
Is that clear? So which one will determine the product? N2 और H2? N2. N2. तो चलो N2 के बेसिस पे करते हैं. तो 1N2 gives you twice ammonia. So 2N2 will give 4 ammonia. हो गया. अगला आते हैं. 1N2 requires 3H2. So 2N2 will require 6H2. But एक्चुअल में कितने H2 दिए गए हैं? 3H2. एक्चुअल में कितने H2 दिए? 3 is the representation बेटा. 7. 7. So the remaining is 7 में से 6 यूज हो गए. प्लीज डोंट फॉरगेट, इसलिए मैंने क्लास के बिगिनिंग में कहा था दिस इज रिप्रेजेंटेशन ओनली. क्लियर है? Yes, sir. बस इसमें यही होता है. Yes, sir. और तो कुछ होता नहीं है. एक और क्वेश्चन होता है. लिख लो, शायद आ जाए. आएगा नहीं वैसे, बट मे भी पूछते. बहुत आसान है इसलिए करा दे रहा हूं मैं. ओके, डालना हेडिंग परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड देखिए जरा. तो अगर ये लिखा है मैंने, तो ये बताओ, ये इक्वेशन है. मैंने यहाँ पे 2A ले लिया, 2 मोल ए के ले लिया. तो 2 मोल्स ऑफ ए कितने बी देंगे? या 2 छोड़ दो, 4 मोल्स ले लेते हैं. 4 मोल्स ऑफ ए कितने बी देंगे? हाउ मच बी विल बी ऑब्टेन्ड इफ 4 मोल्स ऑफ ए हैज बीन टेकन? दिस इज द क्वेश्चन. 12. हाँ, 6B. 6 मिलेंगे. क्लियर है 6 is 12. Sir. भाई? 2A से 3 भी है, 6. तो 4A से 6 भी होगा. राइट? Yes, sir. ये बेटा तब होता है, जो अभी तक ये कहानी हम करते आ रहे थे, ये तब होता है जब आपका यील्ड 100% का. यील्ड मतलब होता है कितना प्रोडक्ट मिलेगा आपको. ठीक है, हाउ मच प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन. सो दैट इज व्हेन द यील्ड इज 100%, मतलब कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. बट रियलिटी में कभी भी यील्ड 100% नहीं होती है. ठीक है, यील्ड कभी भी 100% नहीं होती है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कि इसकी यील्ड 80% है, तो आपका जो आंसर 100% करके आता था उसका 80% कर देना बस. जो भी आपका 100%, जो भी आपने अभी सीखा है, जैसे 100% करके लिखा तो 6 आता, तो आप बस उसका 80% कर देना. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बस ये करना है आपको. इसलिए मैंने बताया कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. जो भी यील्ड लिखी होगी, जितना प्रोडक्ट 100% करके आता है उस यील्ड से उसको मल्टीप्लाई कर देना. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे यील्ड लिख देता 70%, तब प्रोडक्ट कितना बनता? बोलो. If the 4.2. yield was 70%, what is the amount of product that will be formed? 4.2. 4.2. बस ये है. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं. ओके, बड़े Yes, sir. एक और क्वेश्चन कर लो इन केस, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस से. 2A Yes, sir. gives you 5B. ठीक है, यहाँ पे 3 मोल्स दिए गए हैं और यील्ड इज 50%. प्रोडक्ट बताओ कितना होगा? तो पहले 3 के करस्पॉन्डिंग निकाल लो, फिर उसका 50% कर दो. 3.75. ओके, तो 2A से 5B बनता है, तो 1A से 5/2B बनेगा. तो 3A से कितना बनेगा?
15/2b, बट आपको इसका 50% करना है, तो 15/2 इंटू 50/100, तो 15/4 हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमने जो हमारी सबसे पहली क्लास थी इसमें पढ़ा था हमने कंसंट्रेशन टर्म, तो मैं उसमें बहुत इन डेप्थ अभी नहीं जाऊंगा फिर, ठीक, हमने पूरी क्लास लगाई थी, तो आपको उसे रिवाइज करना होगा, बट मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ अभी बेसिक्स, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स। पहला हम डायरेक्ट मोलारिटी पढ़ते हैं। अपर केस एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट मत ले लेना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दिस इज द मोलारिटी। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो मोलारिटी का यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। लीटर, ठीक है। बट ज्यादातर हम मोलारिटी को अपर के एम से दिखा देते हैं, इससे काम चल जाता है हमारा, हमें मोल पर लीटर बहुत कम लिखना पड़ता है, ठीक है। बट आपको एक ऐसा भी आना चाहिए लिखना, अगर मान लो मैंने कहीं पे बोल दिया 4m है, किसी चीज की मोलारिटी 4m है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट मान लेते हैं हमने ले लिया 4 मोल NaOH, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 4 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 1000 ml या 1 लीटर, जो भी आपको अच्छा लगता हो, सोल्यूशन। तो पढ़ना भी आना चाहिए, अगर आपको कहीं मोलारिटी दी गई है तो मोलारिटी का मतलब क्या होगा कि 1 लीटर में उतने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है? Yes, sir. राइट डाउन अ क्वेश्चन, पहले भी किया था, फिर से वही क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्लास में, जैसा मैं कह रहा था, इसीलिए चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, तो हम इसको केवल बेसिक करेंगे, इसका बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, और क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है हमने, तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक फिर शुरू करेंगे। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। सारे 49 ग्राम ऑफ H2SO4, अब तक याद हो जाने से, अब तो इतनी बार H2SO4 हम यूज कर चुके हैं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 250 ml solution. 250 ml solution. Calculate molarity. Calculate molarity. सर Same टू हाँ 2 पर मोल पर yes, लीटर। सही है। तो मास इज इक्वल टू कितना है? 49 ग्राम। H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो 98 आता है, अगर नहीं निकाला हो तो भाई याद कर लो, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद होनी चाहिए, फ्रॉम 1 to 30, ठीक है। वॉल्यूम इज 250 ml, दैट इज 250, आपको लेकिन लीटर में रखना है, तो अपॉन 1000 लीटर, दैट इज 1/4, और मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, so that is 1/2. तो molarity is equal to moles upon volume in liter, तो आंसर is 2, ठीक है। इट इज 2 मोल, ठीक है। सर okay, Yes, अगला sir. लिखिए 90 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है बेटा 180. ठीक है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन या एडेड इन, ऐसे लिखना 500 ml 500 ml solution. Calculate the molarity. Calculate the molarity. बाकी लोगों का नहीं हो रहा है. मास इज इक्वल टू कितना है 90. इसका जो मोलर मास होता है ये 180 आता है, तो मोल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 90 अपॉन 180, तो दैट इज 1/2. वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml, that is 1/2 liter. So molarity is equal to weight in number of mole upon volume in liters. So that is 1. Clear है? Yes, sir. Okay. तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं. अब एक क्वेश्चन होता है जैसे कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन. हेडिंग डालना डाइल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी कहानी होती है. इधर देखो, पहले एक चित्र बना के थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा. तो मान लेते हैं शुरू में जो था आपके पास, इसकी मोलैरिटी m1 थी एंड वॉल्यूम इसका v1 था. क्या था, इसकी मोलैरिटी m1 थी और इसका वॉल्यूम v1 था. अब हमने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, कुछ वाटर ऐड किया, मुझे नहीं पता कितना ऐड किया, आपने ऐड किया. तो जब वाटर ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा ना. इतना तो क्लियर है ना कि जब वाटर ऐड करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी. तो मान लेते हैं कि नई जो कंसंट्रेशन है वो m2 है और वाटर ऐड किया है, तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, राइट? तो इसका वॉल्यूम हो गया v2. ठीक है, तो जब डाइल्यूशन आप करते हैं तो उसका जो फंडामेंटल होता है वो होता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2. अच्छा, ये कैसे आया ये भी समझ लीजिए. ये बताओ, अगर आपने शरबत बनाया है, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ शरबत? हम जूस कह सकते हो, बेसिकली शुगर प्लस वाटर, दैट्स इट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड शरबत ओवर हियर. आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट देयर. सो इट्स अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक. ओके, तो बेसिकली यू हैव शुगर प्लस वाटर. एग्जांपल के लिए सपोज करो यू हैव 1 स्पून ऑफ शुगर प्लस 1 ग्लास ऑफ वाटर. तो आप ये पीने जा रहे हैं, ठीक है. नाउ some of your friend comes and he wants it too, but you don't have sugar in your home anymore or it has been spent, so you add 1 glass of water more. तो ये बताओ जरा, क्या पानी ऐड करने से शुगर पे कोई फर्क पड़ा है, शुगर के अमाउंट पे? Is the amount of sugar different because of the addition of water, or is the amount of sugar same as that of before? Different. कैसे बेटा, पहले भी 1 चम्मच था, बाद में भी 1 चम्मच है ना, डिफरेंट कैसे हुआ? Same. क्लियर है ना कि अमाउंट ऑफ शुगर विल रिमेन सेम. सो ड्यू टू द डाइल्यूशन the number of moles of solute do not change. That is the basic concept. Due to the dilution, the amount of solute do not change. लिख देना, amount of solute does not change. Due to the dilution, the amount of solute does not change. Amount of Solutes does not change. अच्छा, पीछे से जी क्या है बेटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या है? अगर मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल रहा है? number moles of मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो यहाँ पे यही तो लिखा है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो दैट इज इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट.
दैट इज द बेसिक। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. So basically, when you are doing that addition, the number of moles of solutes do not change. Is that clear? Yes, sir. Okay, write down a question. Let's see अगर आप कर पाते हैं। होमवर्क है ये, ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, लिखे, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर must be added Yes. to, how much amount of water must be added to 1 molar 100 ml या 2 molar 100 ml NaOH to convert it into 1.5 molar NaOH। तो क्या आप डाइल्यूशन वॉल्यूम क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 2 molar 100 ml NaOH so that it becomes 1.5 molar NaOH। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख लिया है आपने? सबने लिख लिया? Yes, sir. ओके, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, फिर हम देखते हैं क्या शुरू करना है, ठीक है? और इसकी मैं शीट भेज दूंगा और सॉल्व कर लेना, और कोई डाउट हो वो भी पूछेगा। रिवाइज कर लेना प्लीज, रिवाइज द होल चैप्टर। आई माइट हैव सम क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. चलो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you.